Yes, ma'am. Okay, done. So, Ganesh, can you please start with your introduction? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me opportunity to introduce myself. I am Ganesh Kumar Sharma. I belong to Dumka district of Jharkhand. Currently, I am pursuing a BTech in Mechanical Engineering from BIT Sindh Dhanbad, which is affiliated to Jharkhand University of Technology. I have completed my matriculation from Utkarmit High School, Hard Dumadia, and intermediate from Plus 2 National High School, Dumka. Talking about my strength, I am honest, punctual, and self-motivated person. I have done my observation-based industrial training from SAIL Bokaro. Along with, I am working with an NGO, Prayas India, which provide free and quality education to the underprivileged student. My aim is to get an opportunity where I can grow my working skill and get more and more knowledge, which helps me in my future. That's all about me. Thank you, ma'am. Okay, done. So, Ganesh, you are preparing for campus placements and you'll be like completing your bachelor's in 2026, right? Okay. Yes, ma'am. So, what is your plan further? Like, Ganesh, you want to go for masters or you want to join this like organizations for like job only? Ma'am, I want to join organization for job. So, why not masters? Because of my family condition, I have the because of family issue or financial issue, ma'am. Okay, so you have some financial issues. No, okay. So, Yes. what do you think, Ganesh? Like you're preparing for organizations. So, which type of organizations you're preparing for? Public sector, private sector, or government sector? Or you're open to all? Uh, Ma'am, I'm open to all, but I prefer. I'm looking for public sector. You are looking for public sectors. So, why public sectors? Ma'am, they offer good environment and good also good salary package and provide more opportunity to grow. तो सैलरी पैकेज तो आपको प्राइवेट वाले भी देंगे और Yes, प्राइवेट ma'am, वाले but शायद पब्लिक सेक्टर से आपको ज्यादा भी दे दें सो व्हाई पब्लिक सेक्टर ओनली ना ये तो बताओ मुझे सिर्फ सैलरी के चक्कर में yes, ma'am. public No, ma'am. In public sector, lots of other perks are also there, in public sector means पब्लिक सेक्टर में होता है कि मतलब वो सरकारी मतलब वो गवर्नमेंट वाला होता है तो अगर जब मतलब उसमें जॉब से निकाले जाने का कोई खतरा नहीं होता है मतलब मेन एक ये है okay Ganesh, you have mentioned some soft skills, teamwork, leadership, problem solving, and decision making, right? So, can you please give me यस examples like how you think that you possess of all these soft skills? यस मैम जैसे टीम वर्क है जैसे अभी मैं प्रयास इंडिया में पढ़ाता हूँ ठीक है तो अभी एज ए सेंटर इंचार्ज हूँ एक सेंटर का टोटल 4 सेंटर है हम लोग एनजीओ में तो मैं एक सेंटर इंचार्ज हूँ तो एक सेंटर को पूरा का पूरा देखना होता है मेरे को तो जैसे कि अपना बैच का जैसे 2K20 बैच मतलब 2K22 2K26 हम लोग का बैच का जो है वो हम लोग का अलग से टीम बना हुआ है तो कुछ भी काम होता है तो वो मेरे अंदर में रहते हैं तो हम उसको मतलब बताते हैं ये काम करवाना है तो फिर वो लोग अपने जो जूनियर लोग हैं वो लोग से करवाते हैं तो पूरा पूरी टीम को मैनेज करना होता है जैसे कि अभी रिसेंटली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था 15 अगस्त में तो उस टाइम भी बहुत सारा मतलब अलग अलग चीज जैसे कि पहले से डेकोरेशन वगैरह रिफ्रेशमेंट वगैरह डांस उन्स ये सब चीज पूरा और किनको इनविटेशन भेजने हैं पूरा साउंड बॉक्स ये सब अरेंज करवाए थे मैम सबके साथ मिलके तो यहाँ पे टीम वर्क हो रहा है ठीक है टॉकिंग अबाउट योर एकेडमिक्स आपने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ब्रांच टॉपर राइट यस मैम तो मुझे यस एक बात बताओ कि दो टाइप की नॉलेज होती है एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज किसी चीज की और एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज तो यस गणेश मैम को क्या लगता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट या दोनों का रोल इक्वल होता मैम दोनों का रोल इक्वल है थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो ही हम उसको प्रैक्टिकल वे में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको अ, इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है है दोनों इम्पोर्टेंट है ओके यहाँ पे आपने मेंशन करी हुई है कई पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट
यस मैम। center in charge, public relation officer and everything, right? So यस मैम। गणेश, जब भी आप कभी किसी टीम को लीड करते हो या कभी भी आप किसी टीम में वो करते हो, तो यू फाइंड डिफरेंट चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मनमुटाव हो यस जाते मैम। हैं, बीच बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, है ना? सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, एंड हाउ यू थिंक इन फ्यूचर you'll improvise yourself for all these such situations? मैम अगर किसी को इस तरह होता है तो उनसे जाके बात करते हैं। फिर जो इशू होता है उससे रिलेटेड बात करते हैं, उनको समझाते हैं, और जो अगर हम लोग की तरफ से कोई भी गलती होता है तो उसको मतलब नेक्स्ट टाइम से मतलब ऐसे ना किया जाए, इसको ध्यान में रखते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। Okay. ठीक है। तो जब भी आप कभी कोई भी सेक्टर ज्वाइन करते हो, ठीक है, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो गणेश, तो दो टाइप की ग्रोथ होती है जिसको हम देख के ज्वाइन करते हैं। एक मैंने आपको जैसे भी बताया, एक फाइनेंशियल ग्रोथ होती है और एक करियर ग्रोथ और एक्सपोजर होता है। तो गणेश, आपके लिए यस कौन सी ग्रोथ एक प्रायोरिटी है एंड व्हाई? मैम, करियर ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, लेकिन स्टार्टिंग मतलब फाइनेंशियल ज़्यादा नीड है अभी तो। आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हाँ है। अभी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर लेकर, अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी मिले तो साथ साथ आपका करियर ग्रोथ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? क्या लगता है गणेश को? कुछ तो होगा ना आपने अपने दिमाग में जो सोचा है कि मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो साथ साथ कुछ अपना एक्सपोजर का और करियर ग्रोथ के बारे में भी सोचा होगा। क्या सोचा है? यस मैम। यस मैम, फाइनेंशियल ग्रोथ से करियर ग्रोथ के बारे में भी सोचा है, जैसे कि जॉब के साथ और भी बहुत सारा सेक्टर में जो मतलब काम करने का सोचा है, जैसे कि अलग से बिजनेस में भी मेरा उतरने का प्लान है। ओके, ठीक है। तो गणेश, अब मैं आपको ना फीडबैक देती हूँ, ठीक है। यस सबसे मैम। पहली बात तो, कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हो बीच बीच में? इतने अच्छे से आंसर्स दे रहे हो, फिर बीच में डर क्यों रहे हो? ये डर लग रहा है कि यस सही मैम। आंसर दे रहा हूँ या नहीं? यस मैम, थोड़ा लगता है मतलब मैं यहाँ बताती फर्स्ट। हूँ, जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, सबसे पहली बात तो, अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो गणेश, सामने वाले बंदे को भी देख के कॉन्फिडेंस आता है और मुझे खुद को तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यस मैम। अगर मैं ही पहले, लेट्स सपोज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, ठीक है, एक इस एग्जांपल से लेके चलते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं डर के इंटरव्यू दे रही हूँ, आपको मजा आएगा लेने में? नो मैम। आपको क्या लगेगा कि ये तो पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्वेश्चंस तो कहाँ पूछूंगी या पूछूंगा? डन। यस मैम। अब बताओ मुझे, हाउ इट हैज टू बी। हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी धीरे धीरे हमें यस मैम। तैयारी करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको तैयारी करवाने के लिए बैठी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी अब कि धीरे धीरे आपको क्या क्या चीजें इंप्रोवाइज करनी है, ठीक है। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस। जो गणेश से पूछा यस जा रहा है ना, वो गणेश के बारे में ही पूछा जा रहा है। डन। यस मैम। गणेश को किसी और के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा ना? तो गणेश को सबसे अच्छे तरीके से कौन जानता है? खुद मैम। खुद जानोगे ना? तो जब भी अपना कोई यस मैम। आंसर दे रहे होते हो ना, मैं मानती हूँ कि कभी कभी अगर हमने पहले इंटरव्यू नहीं दिया होता, हमें क्वेश्चंस नहीं पता होता, पर जब धीरे धीरे हमें पता लग जाता है ना क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने जवाब देना है गणेश। देन, दूसरी चीज ये है कि जो मैंने यस आपसे पूछा था ना कि आपने पब्लिक सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है और प्राइवेट, लाइक पब्लिक सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपने पहले आंसर नहीं दिया, मैंने फिर स्ट्रेस करके पूछा आपसे कि इसलिए क्यों ज्वाइन करना चाहता, तो आपने आंसर दे दिया। अपनी जस्टिफिकेशंस को स्ट्रांग रखो थोड़ा, डरो मत जस्टिफिकेशन देने में। अगर आप ओके इसलिए मैम। ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि मैं फाइनेंशियली भी और करियर वाइज भी पब्लिक सेक्टर में ग्रो कर सकता हूँ, तो जाओ, कौन रोक रहा है आपको? पर डर के नहीं बोलना ना। अगर मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूँ तो मैं प्राइवेट में जाऊंगा क्योंकि मेरा मन है, अगर मैं पब्लिक में जाना चाहता हूँ तो मैं जाऊंगा, वो मेरे दिल को पता है कि मेरे अपने रीजंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। यस तीसरा, जब भी कभी आप आंसर दे रहे हो ना गणेश, आपके आंसर की ना जस्टिफिकेशन नहीं है प्रॉपर, आप एक लाइन में आंसर खत्म कर देते हो, जस्टिफाई तो होता ही नहीं। मैंने लास्ट में आपसे यस पूछा कि मैम। आपके लिए कौन सी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है एंड वाई, आपको तो आपने एक लाइन में आंसर दिया, मुझे वाई का तो आंसर फिर नहीं मिला। डन।
इन चीजों पे हमने धीरे धीरे वर्क करना है, क्योंकि जब हमने 2026 में हमारा खत्म होगा तो उसके बाद हमने बहुत अच्छी जॉब पे लगना है। उसके लिए हमें पहले अपने आप को ओवरऑल अच्छा करना पड़ेगा। आपने 4 सालों में टेक्निकली नॉलेज ले ली, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। टेक्निकली गणेश बहुत स्ट्रांग होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना चाहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रांग होगा। लेकिन हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, हमारी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बोलना, कॉन्फिडेंस, वो सब हमने ध्यान में रखना है। डन। यस मैम। चलो ठीक है। और देते रहो स्नैप, धीरे धीरे और क्वेश्चंस पता लगेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच गणेश।